Hello and welcome back to the channel. Today, in our initiative to understand UPSC and see how is UPSC framing its question, what are the areas where one should focus and what are the areas where one should not focus much, we are going to see it through polity thematical previous year questions. See, one thing which is very fixed in UPSC is to go through the previous year questions. Previous year questions हमें ये बताते हैं कि UPSC के focus areas कहाँ हैं. Recently the current problem in this UPSC industry if I can say is कि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, कोई मीनिंगफुल साउंड नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं, बट देयर इज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉइज़. और ये सारा नॉइज़ इसलिए है क्योंकि एक ये पर्सपेक्टिव बना दिया गया है मार्केट में कि यूपीएससी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. और इस ये जो अनप्रेडिक्टेबल नेचर है यूपीएससी के क्वेश्चंस का, टू टैकल दिस यू नीड टू गो थ्रू रैंडम क्वेश्चंस. एंड आई हैव सीन देयर आर रैंडम क्वेश्चन पेपर्स ऑफ रैंडम इंस्टीट्यूट्स. वो कुछ भी पूछ रहे हैं, बिल्कुल इन डेप्थ जाके पूछ रहे हैं, ऐसा टॉपिक पूछ रहे हैं जो यूपीएससी शायद कभी ना पूछे, बट वो ये पूछ के ये बता रहे कि देखो भैया वी नो हाउ टू प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी. ऐसा कुछ भी नहीं है. So in my this initiative, I will be going through polity, economy, history, geography, जितने भी subjects हैं उन सब के previous year questions. I will lead you through the previous year question and show you कि ऐसे वही questions बार बार focus हो रहे हैं. And these are not very tough questions. These are very simple questions, basic concept वाले questions हैं. So we are going to solve last 11 years के questions. So today I would be starting from 2012 एंड 2013 के एक दो क्वेश्चन है, एंड देन 2013 के सारे क्वेश्चन वी वुड बी स्टार्टिंग एंड वी वुड बी सॉल्विंग टिल 2024. सब्सिक्वेंट वीडियोस में छोटे वीडियोस ही रहेंगे. इसके पहले एक इकोनॉमी का मैंने निकाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट देन अगेन आई कुड नॉट कंटिन्यू डैट. सो फ्रॉम नाउ ऑन आई वुड ट्राई टू बी मोर रेगुलर एंड आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? ठीक है. अब देखिए, अब ये जो कंसेप्ट है, like this area, the Parliament chapter of Lakshmikant, that is important. उसमें भी what is more important? Difference between Lok Sabha and the Rajya Sabha, difference between the powers. Like there is a topic where it is written areas where Rajya Sabha has special powers compared to Lok Sabha, where Rajya Sabha has lesser power compared to Lok Sabha, and where both have equal powers. ठीक है. तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स मतलब कि ओनली राज्यसभा कैन डू दिस, लोकसभा कैन नॉट डू दिस. ठीक है. टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट, ऑफ कोर्स लोकसभा कैन डू दिस. ठीक है. टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है. अब ये देखिए, दिस इज द कंसेप्ट. ये जो स्टेटमेंट है, बिफोर इवन लाइक ऑफ कोर्स आई हैव हाइलाइटेड दिस, बट when I ask you the question, the first point should be कि Rajya Sabha क्यों बना? If we already had Lok Sabha, what was the need of Rajya Sabha? And herein in this concept lies your answer. What does Lok Sabha represent? Lok Sabha represents the people. Lok Sabha represents the people of India. The MPs you select, like there is election in 2024. All the MPs that you are going to select, your MP of your constituency is going to represent all the people of your constituency. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से कहते हैं, राइट. तो फिर व्हाट वाज द नीड ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स. तो जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. लोकसभा, द एमपीज ऑफ लोकसभा आर सेलेक्टेड बाय whom? They are selected by us. In this 2024 elections, we are going to select the Lok Sabha MPs. Rajya Sabha MPs are selected by whom? They are selected by the MLAs of your respective state. Who selects the MLAs of your respective states? We, the people of India. Sovereign तो हम ही है ना. तो the MLAs of a state, they vote for the people who are going to be the MPs of the Rajya Sabha. तो बेसिकली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो एक लोकसभा, देयर वाज वन लोकसभा विच विल रिप्रेजेंट द पॉपुलर मैंडेट, एंड उसके ऊपर एक राज्यसभा बनाया गया विच विल रिप्रेजेंट द मैंडेट ऑफ द स्टेट. दिस मैंडेट ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है. तो अगर स्टेट को राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड अगर पार्लियामेंट चाहते हैं कि वो स्टेट लिस्ट में घुसकर कुछ काम करे, तो किसका परमिशन लेना होगा? स्टेट्स का. अब पार्लियामेंट सारे स्टेट्स का परमिशन कैसे लेगी? सबको लेटर लिखेगी या सबसे बात करेगी? कैसे करेगी? बिल्कुल नहीं. वो जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं से बात कर लेगी. स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ बैठते हैं? इन द राज्यसभा. सो ऑलवेज रिमेंबर
if the parliament needs to do anything in the state list, it will need to take the permission of the Rajya Sabha. It will need to do it. Why? Because Rajya Sabha to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services. The C is to amend the election procedure of the president and to determine the pension of the president after his or her retirement. Now president is for all in entire India, ठीक है. प्रेसिडेंट के लिए वाई ओनली राज्यसभा शुड डू दिस, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सबके हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स. अगेन ये कौन करेगी? अगर कुछ भी चेंज करना है तो दिस विल गो थ्रू बोथ द हाउसेज. इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट चेंज करना है तो दिस विल अगेन गो थ्रू बोथ द हाउसेज. एंड ऑफ कोर्स एंड अगेन अनदर थिंग इज कि प्रेसिडेंट हु वोट्स इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? MPs of Rajya Sabha, Lok Sabha and MLAs of all the states and UTs with legislature. How many UTs of legislature are present right now? Delhi and Puducherry. तो अगर इलेक्ट सब कोई कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, MLAs are also voting, MPs are also voting, and then if you need to change the election procedure, तो फिर इसमें दिस इज समथिंग विच विल अफेक्ट फेडरलिज्म अ लॉट. तो यहाँ पे पहले तो बोथ हाउसेज से पास होगा एंड देन द स्टेट्स विल नीड टू पास. ठीक है, बट ये जो है पार्लियामेंट को अगर लॉ बनाना इन द स्टेट लिस्ट तो राज्यसभा. ठीक है. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन. ठीक है. नाउ सी अ वेरी गुड trick, not even a trick, I would say a thumb rule to clear, to get the correct answer of most of the questions in UPSC prelims is to have a broader perspective. अपने perspective को जितना broad रखोगे उतने chances है कि you are going to get the correct answer. अब education is very very big term. Education मतलब if a kid is going to nursery or upper KG or lower KG, even that is education. Someone who is studying in college, even that is education. Someone studying in a urban area in a very posh school, that is also education. कोई गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, you have seen ना कि in villages मतलब there are seen कि स्कूल एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है बट स्टिल पीपल आर स्टडिंग, इवन दैट इज एजुकेशन. तो एजुकेशन इज अ वेरी वेरी बिग टर्म. ठीक है, तो जितना बड़ा पर्सपेक्टिव रखोगे उतने सही आंसर्स मिलेंगे. नाउ DPSP. ठीक है, DPSP टेल्स कि स्टेट शुड टेक इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years. ठीक है, DPSP तो बिल्कुल है, वी नो दिस. रूरल एंड अर्बन लोकल, DPSP में there would have been no confusion. Rural and urban local bodies. Now see this. जो schools होते हैं, पंचायत have a say in their regulation. Similarly, municipalities can decide. ठीक है. And again, bearing on education मतलब कि there are times when what do you call those? जो मिड डे मील्स वाले स्कूल होते हैं. ठीक है, तो पंचायत have a say in that. तो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. और ये भी सोचो ना, बियरिंग ऑन एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट की सिलेबस, इट ऑल्सो रिलेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इट रिलेट्स टू सप्लाइंग ऑफ मटीरियल्स. तो एवरीथिंग इज रिलेटेड इन दैट. तो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ अगर कुछ भी कर रहे हैं तो सही है, जब तक किसी ऑप्शन को बिल्कुल ही गलत प्रूव ना कर सको तो उसको स्ट्राइक आउट मत करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज शुड बी देयर, शुड नॉट बी देयर, तो try to, this is asking that which of them have a bearing, try to prove that which of them do not have a bearing. Use all your force कि नहीं ये तो नहीं ही होगा. अगर वो कर पाए तो ही सही है, वरना फिर consider it to be correct. Again, 5th schedule and 6th schedule. What are 5th schedule and 6th schedule related to? These are related to schedule areas for the scheduled tribes. तो 6th schedules and 5th schedule में, 6th schedule में there is autonomous district council बनते हैं एंड 5th शेड्यूल में जाए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स. तो इनका काम होता है कि ये ट्राइबल रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं उन सब पे दे आर गोइंग टू कंट्रोल. ट्राइबल लैंड, ट्राइबल मार्केट, ट्राइबल कस्टम्स, ट्राइबल एजुकेशन, एवरीथिंग. तो 5th एंड 6th शेड्यूल में बेसिकली एक पैरेलल बॉडी बना दिया जाता है जिसको बोला जाता है कि ट्राइबल्स के जितने भी अफेयर्स हैं वो आप देख लीजिए. ठीक है, तो अगर सारे अफेयर्स देख रहे हो तो उसमें एजुकेशन ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. एंड 7th शेड्यूल. ठीक है, तो 7th शेड्यूल इट डिवाइड्स इन द 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, तो वहाँ पे तो बिल्कुल एडुकेशन तो वहाँ लिखा ही हुआ है, तो 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। अगेन एक चीज़ देखना, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2013 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल पूछा है। आप 2022 या 2023 के पेपर उठा लो, ठीक है, जस्ट पिक अप द पेपर ऑफ 2022 23, दे आर स्टिल क्वेश्चंस फ्रॉम 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, सो like it has been a decade yet UPSC is focusing on 5th schedule and 6th schedule, so this becomes your duty, your moral duty to study 5th schedule and 6th schedule because questions are going to come from here, यहाँ से questions आएंगे ही आएंगे, तो डोंट गो कि मतलब यूपीएससी रैंडम पूछ रहा है, अगर लॉ से कुछ पूछ लिया, जुडिशियल कस्टडी से पूछ लिया, तो बिल्कुल ही एकदम यूट्यूब पे आके आई हैव सीन पीपल की यूपीएससी चेंज हो चुका है, दिस इज अगेंस्ट द पीपल, अगेंस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस, शांति। और यहाँ देखो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल ये 1 दशक से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए, इस प्रीलिम्स के लिए फोकस ऑन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। मूविंग ऑन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखना, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कन्फ्यूज्ड इन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। कन्फ्यूज्ड इन द सेंस कि डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द रिच हेरिटेज, वो सेम चीज़ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिख जाती है, सेम चीज़, ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट्स। तो हाउ टू नो विच स्टेटमेंट इज वॉट? अ वेरी वेरी सिंपल रूल विच आई लर्न फ्रॉम माई टीचर इज anything which involves, which tells a human to do this, that is fundamental duty, which tells a government to do this, that is DPSP. For example, to preserve the rich heritage of our composite culture, another provision which tells the to protect the environment and to protect the wildlife, तो ये DPSP में भी लिखा हुआ है एंड ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज में एक एक्स्ट्रा लाइन है, to have compassion for wildlife. अब compassion is something which only a living being can have, only a human can be compassionate or empathetic. How can a government be compassionate? तो यहाँ पे that becomes a fundamental duties, ठीक है। To protect the weaker sections from social injustice. Social injustice, अगर injustice होता तो फिर भी आप कह सकते थे कि ठीक है humans are good. Justice मतलब कि सोसाइटी ही गलत कर रही है weaker sections के साथ, so you need to protect that. अब हाउ एज एन इंडिविजुअल कैन यू प्रोटेक्ट द एंटायर वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस? बट एज अ गवर्नमेंट यू कैन, आप रिजर्वेशन दे सकते हो, ये जो EWS रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, दैट इज हाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द वीकर सेक्शन। जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल को, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, वो क्या है? अगेन यू आर प्रोटेक्टिंग द वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस, आप उनको अलग अलग स्कीम्स में, लाइक for example in Ayushman Bharat Yojana you are giving them health benefits, Pradhan Mantri Awas Yojana you are giving them, so this is you are protecting them from, you are bringing laws against untouchability, you are making laws, you have included in a fundamental rights that there would be no hereditary titles, so you are protecting them from social injustice. Who can do this? The government. So this is DPSP 1, 3 and 4. Moving on, according to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governments of the country? ठीक है, इस क्वेश्चन पे 2021 में भी a similar pattern was asked, which again had the same theme. ठीक है, तो nothing is changing very drastically. ठीक है, so see, fundamental rights, fundamental duties and DPSP, इन तीनों में basic difference, like one liner differences. Fundamental rights, दे एम्पावर द सिटीजन, दे लिमिट द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स मतलब आपको राइट मिलता है कि भाई ये मेरा अधिकार है, एंड यू कैन टेल द गवर्नमेंट पीछे हट जाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सपोज आप सब स्कूल गए हो, तो अगर स्कूल में आपके टीचर है फर्स्ट क्लास में, आपको बोले, आपने कुछ नहीं कहना, आपको बोले गेट आउट ऑफ द क्लास, व्हाट इज़ योर इमीडिएट रिएक्शन? मैम वाई, क्यों जाऊँ मैं क्लास से बाहर, क्या किया है मैंने? तो दैट इज़ योर राइट। तो अगर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कुछ करती है, रैंडम आपका प्रॉपर्टी सीज कर लेती है, या आपको बोले कि यू नीड टू डिपॉजिट अ मोबाइल फोन, वी आर गोइंग टू स्क्रूटिनाइज इट, सो यू कैन आस्क क्यों, वाई, बिकॉज दिस इज योर राइट। सो योर राइट, फंडामेंटल राइट्स empower the citizen and they limit the government. Fundamental duties,
दीज आर ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, इंडिविजुअल्स के लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्यों? क्योंकि अगर आप इस देश में रह रहे हो, अगर आप इस देश का, आपको लगता है कि दिस गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड यू राइट, तो ऑफकोर्स आपका कुछ ड्यूटी भी होगा इस गवर्नमेंट के लिए, नॉट फॉर द गवर्नमेंट, इस देश के लिए, फॉर द सोसाइटी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर फॉर द पीपल, दीज आर इम्प्लाइड ऑन द पीपल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप पे ही लागू होगा, एंड आप जो ड्यूटी करते हो उससे पूरे सोसाइटी का, पूरे समाज का भला होता है, ठीक है। एंड DPSP इज व्हाट? DPSP टेल्स द गवर्नमेंट टू डू दिस। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द गवर्नमेंट, DPSP एम्पावर्स द गवर्नमेंट, ठीक है। इट टेल्स द गवर्नमेंट कि भैया ये करो, एडुकेशन दो, वर्कर्स के लिए करो, डिसेबल्ड के लिए करो, एल्डरली के लिए करो, कोऑपरेटिव्स बनाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। तो DPSP इज फॉर द गवर्नमेंट, इट इज़ अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स इज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन। नेगेटिव ऑब्लिगेशन मतलब गवर्नमेंट को रोकती है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन मतलब गवर्नमेंट को बोलती है करो, और ये तीनों से समाज का ही फायदा होता है। फंडामेंटल राइट्स से इंडिविजुअल का फायदा होता है, ड्यूटीज से सोसाइटी का, एंड DPSP से भी सोसाइटी का। सो विच आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस मतलब कि गवर्नमेंट को अपने गवर्नमेंट रन करने के लिए क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए क्या होती है? सिर्फ DPSP। सो DPSP इज़ फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ऑल्सो आर्टिकल 37 में दिस इज़ वेरी क्लियरली रिटन। तो DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल, ये सब बहुत ही फेवरेट एरियाज़ हैं UPSC के, बार बार इससे क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आएंगे। Economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in very straightforward question. This question I put here is because you need to memorize the preamble, ठीक है। preamble किसी भी NCERT के फ्रंट पेज पर होता है, कुछ भी हो जाए, whenever you are seeing this video, make a promise to yourself कि if I am seeing this video within 24 hours I will memorize the preamble। ये लिख लो अपने स्टडी टेबल के सामने कि preamble तो याद करना ही है, ठीक है। सो preamble talks about justice, social, economical and political। उन कंसेप्ट पे भी हम आई विल टेक अ क्लास अ डे कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। एंड DPSP दे ऑल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। सो सी DPSP जो है दे आर ऑलवेज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। तो DPSP दे सीक टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। सो DPSP पूरे समाज को इज़ लाइक कि पूरे समाज को, जो लोअर सेगमेंट है समाज का, जो गरीब सेगमेंट है समाज का, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स फॉर दैट। जो सोशलिज्म का कंसेप्ट है ना, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है कि जो जितना कर सकते हो खुद को, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। तो अगर आप में टैलेंट है आप बहुत अमीर बन जाओ, अगर आप में टैलेंट नहीं है आप बिल्कुल गरीब रह जाओ, बिना खाए मर जाओ, गवर्नमेंट विल क्लोज इट्स आई। गवर्नमेंट क्या करेगी? सिर्फ सिक्योरिटी देगी, आर्मी और पुलिस रखेगी कि भैया दंगा नहीं होना चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दो। उस अच्छे एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जिसके पास टैलेंट है वो बहुत आगे जाएगा, जिसके पास नहीं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सोशलिज्म का कंसेप्ट ये है कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही आर्मी और पुलिस से, उसके बाद जिसमें टैलेंट है आप ऊपर चल जाओ, कोई इशू नहीं है। जो कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप पीछे हो तो गवर्नमेंट आएगी और वो आपका ख्याल रखेगी, ठीक है। तो सिटीजन्स का ख्याल रखना गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ DPSP। तो DPSP में जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, एंड प्रियम्बल टॉक्स अबाउट जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो प्रियम्बल तो बिल्कुल ही याद कर जाना, बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। Moving on to the next question. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the DPSP. Article 51. Very straightforward. तो DPSP भी बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया से। ये अगर DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रियम्बल, ये चार चीज़ें अगर बिल्कुल अच्छे से याद है, बी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत सही जाएगा पॉलिटी, ठीक है। The provisions in the 5th schedule and the 6th schedule in the Constitution of India are made in order to, again 5th schedule and 6th schedule, see यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये 2012 का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 या 17 का क्वेश्चन है। क्या बदला है इसमें बताइए? 2022 के क्वेश्चन में सेम, उसमें सिर्फ 5th शेड्यूल पूछा था। व्हाट हैज़ चेंज्ड? एब्सोल्युटली नथिंग, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुड ऑलवेज बी डन, ठीक है। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल व्हाट दे टॉक अबाउट? इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है।
बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, फर्स्ट शेड्यूल। पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत, 11th शेड्यूल। ठीक है, तो शेड्यूल्स भी याद होने चाहिए। वो मैं एक दिन समझा दूंगा, 10 मिनट लगेगा एक वीडियो में। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे याद करना है शेड्यूल को। और ये वो वाला ट्रिक नहीं कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उससे आप रट सकते हो, बट क्योंकि अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आ चुका है तो आई विल टेक 10 मिनट का वीडियो। ठीक है, अगेन, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कस्टोडियन मतलब का क्या होता है? गार्जियन, प्रोटेक्टर। बैटमैन देखा है बैटमैन, तो इसमें बैटमैन इज द प्रोटेक्टर, द डार्क नाइट। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बचाएगा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और द सुप्रीम कोर्ट। सो सी, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उन लॉज को एग्जीक्यूट करना। जुडिशरी का काम क्या है? ये देखना कि जो लॉज बने हैं और जो लॉज एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सही है या नहीं, वो ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट जा रहे हैं या नहीं, ये उनके लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब लॉज कुछ भी गलत बन सकता है, एग्जीक्यूशन का तरीका उनका गलत हो सकता है। जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूशन कितना गलत था। ठीक है, लोगों को हॉस्पिटल के बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रहे थे, मेडिसिन ब्लैक मार्केट में बिक रहे थे, खाने को नहीं मिल रहे थे। कोई ऐसे नॉर्मल निकल रहा था दवाई खरीदने तो उसको क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा था। वी सॉ वीडियोज जहाँ किसी इंसान को एक पुलिस थप्पड़ मार रही थी। तो ये सारे ये किसके हैं? ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो और हमेशा देखना कभी भी, मतलब अगर यहाँ पे नहीं पता, वेरी बेसिक थिंग इसकी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं पे भी अगर एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है तो वहाँ पे लोगों के राइट्स गए हैं। ठीक है, जैसे लोग पाकिस्तान में हाउस आर्मी इज़ कंट्रोलिंग, लोगों के पास राइट्स नहीं है। कोई भी बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट आती है तो लोगों के राइट्स को कर्व कर देती है। वी सॉ इमरजेंसी में क्या हुआ था, इमरजेंसी में कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेंज्ड अलॉट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद भी 39th अमेंडमेंट एक्ट जो जुडिशल रिव्यू को ही हटा रही थी। तो एग्जीक्यूटिव इज़ जनरली अगेंस्ट द राइट्स, मतलब ऐसा नहीं है, बट कभी भी अगर वो हो जाता है, जनरली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, उनका काम है चेंजेस करना, बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ आवर लाइफ एंड लिबर्टी, कहीं भी अगर आपके किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो दैट इज द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी। अगेन सी 2019। अब जाओ आप किसी रैंडम वीडियो में बोलेगा ये पढ़ो वो पढ़ो, लक्ष्मीकांत से नहीं होता है, डीडी बासु भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम आराम से शांति, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। कहीं भी सोशो इकोनॉमिक हो और उसके बाद कुछ भी वर्ड लगे, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशो इकोनॉमिक लिबर्टी, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक मतलब डीपीएसपी। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स क्या करती है? फंडामेंटल राइट्स एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल जस्टिस। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, जस्टिस, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक, डीपीएसपी। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट मीन्स अगर किसी फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, इसका मतलब ये है अगर किसी गवर्नमेंट ने आपके किसी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स नहीं किया, सो यू कैन टेक दैट गवर्नमेंट टू द कोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था, व्हाट वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ व्हाट वाज द इशू कि आर्टिकल 19 सेज यू हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप इन्फॉर्मेशन सीख नहीं कर सकते थे कि विच कंपनी इज डोनेटिंग हाउ मच टू विच पॉलिटिकल पार्टी, तो डैट वाज अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स। तो इसको जब व्हेन दिस वाज चैलेंज, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज चैलेंज, तो वहाँ ये बोला गया कि दिस इज अगेंस्ट माई फंडामेंटल राइट्स, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है ये स्कीम, एंड गवर्नमेंट द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दिस वाज अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला इशू, व्हाट वाज द सबरीमाला इशू कि विमेन वेर नॉट अलाउड इनटू द टेम्पल ऑफ अयप्पा देव। तो वहाँ पे दे टुक दैट, वो जो रूल था कि विमेन इन अ सर्टेन एज ग्रुप आर नॉट अलाउड इन द टेम्पल, तो वो दे टुक इट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाट दे सेड दैट दिस इज अगेंस्ट माय राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आई हैव अ राइट टू लाइफ, आई हैव अ लिबर्टी है, मेरा जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहा था। तो एनीथिंग, एनी लॉ, रूल, लेजिस्लेशन जो आपके फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करे, you can take it directly to the Supreme Court because they are enforceable. DPSP are not enforceable, which is why DPSP में लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में व्हाट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट अगर गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया है तो आप उसे कोर्ट नहीं ले जा सकते क्योंकि दैट आर नॉट एनफोर्सिएबल। तो द करेक्ट आंसर इज बोथ वन, ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया और उसके बाद उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर आप कोर्ट ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोऑपरेटिव्स के लिए, ठीक है, या सपोज देयर इज अ डीपीएसपी विच सेज कि यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स शुड बी रिमूव्ड, मतलब जो भी लिकर है वो सब चीज़ों को रोकना चाहिए बिकॉज दैट इज इन डीपीएसपी। तो अगर कहीं लिकर सेल हो रहा है तो यू कैन नॉट टेक द गवर्नमेंट की वायलेटिंग माई डीपीएसपी। बट अगेन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस डीपीएसपी वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ लॉ। फॉर एग्जाम्पल बिहार एंड गुजरात में, तो बिहार एंड गुजरात में देयर इज नो लिकर सेल। तो अब अगर लॉ बन गया उसके बाद इफ़ यू आर सेलिंग लिकर और इफ यू आर कंज्यूमिंग लिकर, तो फिर देन यू कैन बी टेकन टू अ कोर्ट क्योंकि एक लॉ बन चुका है। बट अगर लॉ नहीं बना है तो सिर्फ डीपीएसपी के बेसिस पे कोर्ट नहीं ले जा सकते। Which of the following are envisaged by the rights against exploitation in the Constitution of India? So right against exploitation, एक ये चीज़ भी देखना, जनरली हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं बट फंडामेंटल राइट्स की भी क्लासिफिकेशन है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 उसमें आता है। राइट टू लाइफ 19, 20, 21, 20, 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, दिस इज अगेन राइट टू इक्वालिटी। तो 2 एलिमिनेट हम करेंगे एंड आंसर 1 एंड 4 आ जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिसेंट का ही था एंड द थिंग इसकी इन चीज़ों पे पूछा जाता है, इस पर दोबारा यूपीएससी विल आस्क। तो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट्स अगेंस्ट द सिटीजन, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला था कि राइट्स सिटीजन को एम्पावर करते हैं, स्टेट को लिमिट करते हैं। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, कहीं भी अगर कैपिटल एस वाला स्टेट दिखे सो दैट इज गवर्नमेंट। तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, मतलब कि राइट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कह सकता है कि गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू सप्रेस यू, बिल्कुल नहीं। राइट्स ही तो हमें एम्पावर कर रहा है। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। आर राइट्स प्रिविलेजेस? राइट्स को जो फंडामेंटल राइट्स, उन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और प्रिविलेजेस में? मतलब ये फंडामेंटल फॉर योर एग्जिस्टेंस, मतलब कि एक इंसान को एग्जिस्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर राइट्स तो चाहिए ही, ये बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक राइट्स है, बेसिक, कि इतना भी नहीं दोगे तो फिर कैसे ही जिएंगे। तो ये प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले 3-4 साल से और आपके घर से आपको पैसा मिल रहा है, तो वो प्रिविलेज है आपका, ठीक है। तो राइट्स हमारा प्रिविलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी हुआ, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और अगर एक लॉ आता है कि अनटचेबिलिटी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये उसका राइट है, ये राइट टू बेसिक लिविंग विद डिग्निटी है, वो उसके प्रिविलेज नहीं है। सो राइट्स आर नॉट प्रिविलेजेस। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, दिस वन, कि राइट्स आपका क्लेम अगेंस्ट द स्टेट। फॉर एग्जांपल राइट टू एडुकेशन। अब अगर गवर्नमेंट आपको एडुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही तो आप जाओ उसको कोर्ट लेके कि आई क्लेम माई एडुकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर रिलीजियस राइट्स, राइट टू रिलीजन 25, 26, 27, 28। तो अगर गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग विद डैट तो उसको कोर्ट लेके जाओ, माई राइट टू रिलीजन। सो राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी, मतलब सिर्फ कुछ सिटीजन को राइट्स मिलेंगे और बाकी को सप्रेस होना पड़ेगा। ये भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है सेंटेंस का। ऐसे तो अगर 10-20 अमीर लोग हैं वही सब कुछ करेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। In the context of India, which of the following is the correct relationship between rights and duties? Rights are co-relative with duties. चलो इस पर बाद में आते हैं। Rights are personal and hence independent of societies and duties, ठीक है।
राइट्स आर पर्सनल, सही बात है, पर्सनल है। इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास राइट है तो आपका जो मन आप वो करोगे, सोसाइटी को नहीं देखोगे, बिल्कुल नहीं। इफ़ यू, क्योंकि सी, जो भी राइट्स है उसके साथ रेस्ट्रिक्शन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 9, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वापस जाओ, या आप ये नहीं कह सकते कि कोई राइवल कंट्री उसकी आप तारीफ नहीं कर सकते, आप गाली नहीं दे सकते। तो दे कम विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19 पढ़ना, उसमें सारे राइट्स के साथ एक एक रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। सो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कम विद रेस्ट्रिक्शन। क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाता है? ताकि सोसाइटी सर्वाइव करे। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। ये जो कंसेप्ट है, ये है अमेरिका का कंसेप्ट, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होते हैं, कि वहाँ पे ड्यूटीज़ वो नहीं देखते। ड्यूटीज़ क्या, कुछ नहीं, वहाँ पे सारा फोकस राइट्स पर होता है। ठीक है, वहाँ पे गन रखना भी, फायर आर्म के लिए भी, दैट इज़ योर राइट। तो वहाँ पे सबके पास गन होता है। लास्ट ऑप्शन इज ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्टेट। ये जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है वहाँ का, कम्युनिस्ट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल रशिया। तो रशिया में आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आप स्टेट से नहीं पूछ सकते कि भाई मुझे ये दो, वो नहीं चलेगा। आप सिर्फ स्टेट को दो, स्टेट आपको कुछ नहीं देगा। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो लास्ट स्टेटमेंट मीन्स कि गवर्नमेंट को आप सब कुछ देते रहो, गवर्नमेंट से कुछ। ये होते हैं कंसेप्ट कम्युनिस्ट का, कि ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट। सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज, कि भैया ड्यूटीज हमें नहीं पता क्या होता है, हमारे पास राइट है, हम कुछ भी करेंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज। ये गांधी जी कहते थे। गांधी जी कहते थे किसी, आई हैव अ राइट कि आई कैन स्विंग माई आर्म। तो मेरा आई हैव अ राइट कि मेरा जितना मन मैं अपने आर्म को उतने दूर तक घुमाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक ड्यूटी भी है। वो ड्यूटी क्या है? कि आपको चोट न लगे। तो अगर आप मेरे बगल में खड़े हो और मैं, अब मेरा राइट है अपने आर्म घुमाने का, तो आई एम स्विंगिंग माई आर्म, बट ऑल्सो इट इज़ माई ड्यूटी कि जहाँ आपका फेस स्टार्ट हो रहा है वहाँ मैं अपने आर्म को रोक दूँ। ठीक है, इफ़ आई एम फुलफिलिंग माई राइट, इफ़ आई एम फुलफिलिंग माई ड्यूटी, and you also you have a right, see, if I have a duty to protect you, you have a right to peaceful existence। तो अगर मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा हूँ तो आपका राइट भी कंजर्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ राइट, ठीक है, कि राइट टू एडुकेशन। अगेन यू हैव अ फंडामेंटल ड्यूटी टू एलिमिनेट बायसेस एंड टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। तो अगर आपका राइट फुलफिल हो रहा है, अगर आप एडुकेशन पा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपका ड्यूटी भी फुलफिल हो रहा है, साइंटिफिक टेम्पर पा रहे हो। अगर यू हैव अ राइट कि यू हैव अ राइट टू एडुकेशन, तो इट इज़ गवर्नमेंट का ड्यूटी टू प्रोवाइड यू स्कूल्स। तो अगर गवर्नमेंट अपने ड्यूटी को सही से करेगा तो आपका राइट भी फुलफिल होगा। सो दीज आर को रिलेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। देखो, लिबर्टी का मतलब क्या? लिबर्टी मीन्स दैट आप, देयर वाज टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ, जो नेगेटिव नोशन ऑफ लिबर्टी था, वो ये था कि मेरा जो मन में वो करूँगा, नो वन इज़ गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मी। ठीक है, तो बिकॉज लिबर्टी है, जो मन वो करूँ। बट एक पॉजिटिव कंसेप्ट आया। पॉजिटिव कंसेप्ट ये कहता था टू डेवलप यूर सेल्फ फुल्ली। ठीक है, तो द बेसिक सेंस ऑफ लिबर्टी है कि अपना फुल्लर डेवलपमेंट देखो, जो करना है वो नहीं करो, आप खुद को बेस्ट कैसे बना सकते हो उस पर फोकस करो। So the first thing says, if there are more laws, there is less liberty। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा नियम बना दो तो लिबर्टी आपका कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ लिबर्टी कि यू कैन पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। अब मैं लॉ बना दूँ कि आप ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं लिख सकते, आप ये लिखोगे तो सेडिशन हो जाएगा। जितना ज़्यादा लॉ बना दूंगा आपका लिबर्टी कम हो जाएगा। ठीक है, इफ़ देयर आर नो लॉज, देयर इज़ नो लिबर्टी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? लॉज का काम क्या होता है? सी, लॉज का बेसिक काम होता है, नियम कानून का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके आप क्या करोगे? आप कुछ सीखोगे, आप अपना फुलर डेवलपमेंट करोगे। अब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो और रास्ते में कुछ 10-15 लोग खड़े हैं और वो आपको बोल रहे हैं कि रोज़ इस रास्ते से जाओगे तो हमारे सामने 500 रुपया रख कर जाना, अगर पैसे नहीं रखोगे तो हम जाने नहीं देंगे और उल्टा तुम्हें और पीटेंगे। तो अब यहाँ पे इफ़ देयर आर नो लॉज, अगर कोई लॉ ही नहीं है उनको रेगुलेट करने के लिए, तो आपका तो लिबर्टी गया भाई साहब, आप तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं जा पाओगे। अब सपोज़ अगर आपके जैसे और 10 लोग हैं,
तो जो सबसे स्ट्रांग होगा इंसान वो तो उन्हें मार के चल जाएगा, या बहुत पैसा वाला है तो पैसे दे के चल जाएगा। जो गरीब है, जो गांव से आया हुआ है, वो क्या करेगा? तो यहाँ पे लॉज बने हैं, रास्ते पे पुलिस है, ठीक है, प्रोटेक्शन दिया जाता है आपको। तो जितने ज़्यादा लॉज बने हैं उतनी ज़्यादा लिबर्टी है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट है ना, अगर ट्रैफिक लाइट है आपके पास तो आपको पता है ये बात कि रेड लाइट पे सारे गाड़ी रुक जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है वो गाड़ी 80 लाख की है या 80,000 का कोई बाइक है, लॉज है तो सबको रुकना है। तो अगर क्योंकि सारी गाड़ी रुक रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो आप कहीं भी जा पाओगे, आप अपना फुलर डेवलपमेंट देख पाओगे। अगर लॉ ही नहीं है तो जो पावरफुल है वो आगे निकल जाएगा, जो वो पीछे छूट जाएगा। तो गरीब का लिबर्टी कैसे फुलफिल होगा? तो इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, बिकॉज इफ देयर इज़ नो लॉज देयर वुड बी केओस, ठीक है। इफ़ देयर इज़ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट मेक लॉज जहाँ से लिबर्टी प्रिजर्व होती है। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज़ इन डेंजर, दिस इज़ करेक्ट, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि अगर आप लॉ चेंज ही करते जा रहे हो हर थोड़े वक्त पे तो आपका लिबर्टी इज़ इन डेंजर, ठीक है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज में गए होगे तो वहाँ वो देखना 10 डेस्क पे जाओ, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगेंगे, नहीं ये तो नहीं, ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो अगर लॉज बहुत ज़्यादा चेंज होंगे तो आपका लिबर्टी डेंजर में। बट ये पूछा है रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, तो बी और डी दोनों ही सही है, बट बी बिल्कुल सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ इज सुप्रीम, नॉट द पीपल हु आर गाइडिंग द लॉ। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ मीन्स कि आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो, लेजिस्लेटिव के पार्ट हो, जुडिशरी पार्ट हो या कॉमन सिटीजन हो, आप सबके ऊपर लॉ है, ठीक है। तो अगर कहीं पे ट्रैफिक लाइट इज़ रेड तो एवरीवन हैज़ टू स्टॉप, ठीक है। अगर आप कोई बहुत बड़े कहीं के एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, एंड आपने कुछ गलत कर दिया, तो जस्ट बिकॉज आप डीएम हो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बोला जाएगा कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप चले जाओ। लॉ के सामने एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। तो मेन फीचर्स क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर्स। तो ये आप कैसे करते हो? पहले तो आप पावर को लिमिट करोगे, जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है। तो अगर कल को कोई बहुत बड़ा इंसान भी अगर आ जाता है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके भी पावर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिमिट करोगे। इसके अलावा भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यही करते हैं। आर्टिकल 14 का इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, तो इसका वो है ही इसीलिए पावर लिमिट करता है पावरफुल के। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल, पीपल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अगर पीपल आर रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट तो इक्वालिटी कहाँ से आया भाई? अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको कुछ केस करना है, अगर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल पुलिस आपका एफआईआर ही नहीं लिख रही है तो डैट इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। तो अब इफ़ यू आर रेस्पॉन्सिबल टू डैट गवर्नमेंट तो आप तो उसके अगेंस्ट कभी जा ही नहीं सकते, तो फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ से बन गया? एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, आपके पास जितना ज़्यादा लिबर्टी होगा उतना ज़्यादा आपको पता, आपके पास जितने ज़्यादा सिविल राइट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ इज़ एग्जिस्टिंग, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। तो यहाँ तक तो आपको सही लगा होगा, क्वेश्चन 12 तक। ये तो आर्टिकल बोलने की बुरी आदत लग गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13, 14 में आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या ही हो गया, इस वीडियो को ज़रा शॉर्ट ही रखता हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है एक बार नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। एंड इसके अलावा भी थोड़े इरेगुलर हो गया था वीडियोस लाने में, बट अभी आई एम गोइंग टू बी वेरी रेगुलर। एंड मई के मिड तक आपके सारे PYQs कवर करवा दूंगा। इफ़ टाइम परमिट्स तो PT 365 भी बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा, सो डैट अ मंथ बिफोर प्रीलिम्स आपका सब कुछ कवर हो चुका होगा। और जब आप PYQs के आंसर देने लगोगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। अदर दैन डैट बताओ आपको और क्या कंटेंट चाहिए इसमें, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग डैट अकॉर्डिंगली। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इसको शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई एम डूइंग कि जस्ट बिकॉज आई हैव सीन लोग कितने ज़्यादा कंफ्यूज है, पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, रैंडम मटेरियल उठा रहे हैं। तो ओनली इनिशिएटिव इसकी ये जो कन्फ्यूजन रहता है जिसमें एस्पिरेंट्स 1-1.5 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी रिपीट हो। सो प्लीज़ डू लाइक द बटन, कमेंट्स करो एंड शेयर करो, क्योंकि ये यूट्यूब, दिस इज हाउ यूट्यूब एल्गोरिदम वर्क्स एंड दिस इज ओनली थिंग आई वुड बी वांटिंग यू शेयर इट, कमेंट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।